استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اس پہ اسٹے آرڈرز لیے گئے, اس کو التوا کا شکار کیا گیا, کبھی کہا گیا کہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے, کبھی کہا گیا کہ دائرہ اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا, کبھی کہا گیا کہ اسکروٹنی کمیٹی کا دائرہ اختیار نہیں ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو منطقی انجام تک جلد از جلد پہنچایا جائے. ایک یہاں سے لیتے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی گنتی کی بات کی ہے, تو جلیل شرک پوری اور 3 ناراض اراکین وہ پچھلے الیکشن میں تو نون لیگ کے ساتھ نہیں تھے, آپ کے ساتھ نہیں, 4 جو ٹوٹل ہو گئے جلیل شرک بالکل لگے, کیا ان سے آپ کے معاملات طے پا گئے ہیں مکمل طور پہ؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن پنجاب لاہور یہ کہہ رہا ہے کہ جو 5 ریزرو سیٹیں ہیں جس میں 3 خواتین ہیں اور 2 دوسرے ہیں, تو یہ تمام لوگ جو ہیں 20 سیٹوں پر الیکشن ہونے کے بعد ٹوٹل میں سے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ سیٹس کہاں ایڈ کر لیں. صاحب اس میں یہ ہے کہ اسی سوال کا ایک ریلیونٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کے 168 کا ٹیبل بتایا, ذرا پورا پوائنٹ 180 کا بتا دیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ 180 اسکور کیسے کرے. یہ بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اراکین 5 تھے, میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. جلیل شرک پوری, فیصل نیازی, مولانا غیاث الدین, اظہر چانڈیا اور اشرف انصاری, یہ 5 ہو گئے. ان میں سے اظہر چانڈیا واپس آ گئے اور عظما قادری اس میں ایڈ ہو گئی, تو یہ 5 ہیں. یہ ہم کلیئر کرتے چلیں. اب جو اس وقت تعداد ہے 165 پہ ہم ہیں, 165 پہ پی ایم ایل این, 7 پیپلز پارٹی 172 میں 4 آزاد ہیں, جس کے اندر بلال وڑائد صاحب ہیں, جس کے اندر قاسم لگا صاحب ہیں, جس کے اندر جگنو محسن صاحب ہیں, اور جس کے اندر احمد علی اولک صاحب ہیں. تو یہ اظہر چانڈیا صاحب کو ملا لیں تو 177 یہ بن جاتی تعداد, 177. راہ حق ملا لیں تو 178 تک چلی جائے گی. ادھر سے اگر ڈپٹی اسپیکر کو مائنس کر دیں جو پریزائڈنگ آفسر ہے تو وہ 157 پہ ہیں, 10 ایڈ کر لیں کاف لکھ کے تو 167. تو یہ واضح فرق ہے کہ ہم 178 پہ ہیں, وہ 167 پہ ہیں, تو ایک ہمارا ایڈ ہوا, ان کا ایک مائنس ہوا. تو یہ واضح فرق آپ کو 11 کا جو ہے وہ بالکل کلیئر آپ کے سامنے ہے, اور یہی عددی اکثریت ہے جو اس وقت موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تعداد کے ہوتے ہوئے جو متناسب نمائندگی والا آپ کا سوال ہے, قانونی طور پہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 63A کے نتیجے میں ممبران ڈی سیٹ ہوئے ہوں. اب جب ممبران ڈی سیٹ ہوئے تو پارلیمانی پارٹی کی جو تعداد تھی وہ اس میں 25 کی کمی واقع ہو گئی ایک دم. اب جب 25 کی کمی واقع ہوئی ہے تو وہ ریزرو سیٹیں موجودہ تعداد کے مطابق آئیں گی, وہ ماضی کی تعداد کے مطابق آ نہیں سکتی. آپ کو ریزرو سیٹس ملتی ہیں آپ کی تعداد کے مطابق. تو دیکھیے جب کوئی ممبر فوت ہو یا ڈسکوالیفائی ہو جائے تو آپ کی تعداد کم ہو جاتی ہے, متناسب نمائندگی تب بھی آپ کو اس کے مطابق ملتی ہے. تو میں متناسب نمائندگی کے فارمولے پہ بالکل کلیئر ہوں کہ وہ جو فارمولا اس وقت موجود ہے اس کے تحت موجودہ تعداد پہ اگر وہ لگایا جائے تو 3 ممبر ہمارے بنتے ہیں, 2 ان کے بنتے ہیں. جی مغل صاحب. بہت ساری سیاسی جماعتیں ماضی میں دھوکہ کھا چکی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی استحکام کے لیے اچھا فیصلہ ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے سرگودا جلسے میں کہا کہ لوگوں سے پوچھا کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے یا حکومت میں رہنا چاہیے, تو لوگوں نے کہا چھوڑ دینی چاہیے, اور مریم نواز اس بار انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی رائے پہ ہوں. تو کیا 2 رائے پائی جاتی ہے اس وقت نون لیگ میں؟ آپ اس وقت اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہے, ہم حکومت میں ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں نہیں ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, مگر آئین کے اندر عدم اعتماد کی بھی شک موجود ہے. اب عدم اعتماد کی شک موجود ہوتے ہوئے دیکھیے اگر کوئی ایسا شخص وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن جائے جو اینٹی اسٹیٹ ہو یا جو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے جیسے نیازی صاحب کھو بیٹھے ہیں, تو اس کو نکالنے کا پھر آئین میں کیا راستہ موجود ہے عدم اعتماد کے علاوہ؟
कोई रास्ता मौजूद नहीं है, तो अदम एतमाद की शिक मौजूद है। और अदम एतमाद की शिक इसीलिए मौजूद है कि कोई ऐसा शख्स इख्तिदार में आ जाए जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, तो उसको निकालने का तरीक़ेकार आइन में दर्ज है। की हिदायत के खिलाफ वोट आएगा, उसको डी सीट किया जाएगा। हमारी कंटेंशन यह है कि इस केस में पार्टी की डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग नहीं की गई, लिहाजा इन मेंबर्स का डी सीट होना नहीं बनता। जी अच्छा सर, गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं कि पार्टी की डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि जो मुनहरफ अरकान है वो अपना केस खुद लड़ते हैं? जैसे इमरान खान फराग होके का केस लड़ रहा है, आप जो है वो मुनहरफ अरकान का केस जो है वो फाइट कर रहे हैं, और मुनहरफ अरकान हमें नजर दिखाई नहीं दे रही। इस हिस्से में बताइएगा कि वो खुद भी इस पे बात करेंगे, मगर हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पार्टी डायरेक्शन की गैर मौजूदगी में उन्होंने अपनी मर्जी से कानून के तहत हमें वोट दिया और बॉयकॉट मौजूद था। तो हम ये समझते हैं कि वो वोट ठीक डाला गया, जायज़ तरीके से डाला गया, कानूनी तौर पे डाला गया, इसलिए हम उनका दिफा करते रहेंगे। एक यहाँ से एक वहाँ से। ये बताइएगा कि जी। इस वक्त जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, हमजा शहबाज किस मूड में है? वो कोविड करना चाहते हैं या असम्बलियत तहलील करने के मूड में? आप लोग इस वक्त मूड किस में है? अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर आप लोग हुकूमत में काम करना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमजा शहबाज बहुत अच्छे मूड में है, वो बहुत अच्छे मूड में है। और देखिए, आज मुझे खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि कल वज़ीर आला पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 200 अरब की आटे की सब्सिडी दी, 10 किलो का आटे का थैला 650 रुपए से 490 रुपए का किया, 160 रुपए की कमी की 10 किलो के थैले पे, 16 रुपए की कमी की पर किलो आटे पे। अब आज से आटे की तरसील शुरू हो गई है पूरे पंजाब में, और अगले 2 रोज में ये जो 490 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला है, ये पूरे पंजाब में दस्तयाब होगा। आज अलग सुबह मिलों ने गंदम को ग्राइंड करना शुरू कर दिया था, आटे की पैदावार शुरू कर दी थी, और मिलों से आज ट्रक निकल के मार्केट्स में पहुंच गए हैं, पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो हमजा शहबाज का विजन ये है कि आटा सस्ता किया जाए, चीनी सस्ती की जाए, घी सस्ता किया जाए, अशियाए खुर्द-ओ-नोश जो महंगी है उनका नोटिस लिया जाए, अगर पिंडी में इम्तहानात के कागज जो पर्चा आउट हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर नोटिस लिया जाए। तो ये जीता जागता वजीर आला है, ये वो वसीम अकरम प्लस नहीं है कि जिसको अपने हमसाये में नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के बुरे हालात थे, वो पूछता फिरता था कि ये कोरोना काटता कैसे है, और पहली दफा देखा कि अब उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, तो कोरोना की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर पे दौरा किया कि मैं कोरोना देखूं कि कोरोना कहां फिर रहा है। मैंने किसी से पूछा कि मैंने पहले ये नहीं देखा कि कोरोना के हवाले से हेलीकॉप्टर सैलाब में आप दौरे करते हैं, हेलीकॉप्टर पे देखते हैं कि कहां तबाही हुई, कहां इमदादी सामान की जरूरत है, मगर कोरोना के दौरान हेलीकॉप्टर का सफर, वो बाद में किसी ने बताया कि वो लॉकडाउन चेक कर रहे थे हेलीकॉप्टर से कि लॉकडाउन पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो वैसे चेक कर ले इंतजामिया के जरिए, आरपीओज हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डीपीओज हैं, पूरा इंतजामिया का एक स्ट्रक्चर है। ये पहला शख्स है जिसने तारीख में पूछा कि कोरोना काटता कैसे है, और कोरोना को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी भी की। एक एक करके कर सारों के लेते हैं। कारण साहब, पिछले 3 माह से ये पंजाब में देखा जा रहा है कि आइन की मुसलसल गिरावट हो रही है, कभी गवर्नर हाउस से हो रही है, कभी पंजाब असेंबली से हो रही है, तो पंजाब कबीना भी अभी तक नहीं बन सकी। तो आगे भी यही लग रहा है, क्योंकि जो अभी आई हम नगर के हवाले से जो नहली हुई है, तो उसमें भी ये देखा जा रहा है कि पंजाब असेंबली में मजीद इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं आइन की गिरावट के हवाले से। देखिए, मैं ऐड कर रहे देखिए, हक उनका बनता है, पार्टी फैसला इस पे करेगी, मगर मेरी नाकस राय में हक उन्हीं का बनता है। अच्छा सवाल था आपका। बाकी गैर कानूनी, देखिए
परवेज इलाही साहब का अभी भी ये पूरा मूड है कि वजारत आला की कुर्सी पे विराजमान हुआ जाए, और वो अंग्रेजी में कहते हैं बाय हुक और क्रुक। क्रुक तो वो पुराने थे इमरान खान, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ने कहा था। डाकू की अंग्रेजी जो है वो क्रुक होती है, डेकॉइट भी कहते हैं, क्रुक भी कहते हैं। तो ये एक क्रुक हुक लगाने की कोशिश कर रहा है, वो हुक नहीं लगाने देंगे, कानून हरकत में आएगा जहां कोई गैर कानूनी अमल हुआ। जी जी, अच्छा ये बता दें कि ऑपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा था कि इक़्तिदार में आपके आने का मकसद जो है वो अपने केसों की जो है वापसी की है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी रुकावट बन गई है कि आपके जो तफ्तीशी अफसर चेंज किए, जो प्रोसिक्यूटर चेंज किए, उसका रिकॉर्ड आप समझते हैं कि एक बड़ी रुकावट आपके लिए पैदा हो गई? देखिए, जो प्रोसिक्यूटर्स की तब्दीली है वो पिछले दौर में हुई। डॉक्टर रिजवान मरहूम जाते जाते अफसरों के तबादले करके गए, तफ्तीशियों के तबादले करके गए। प्रोसिक्यूशन टीम को इमरान खान के तैनात करदा सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने चेंज किया, और अभी तो हमने चार्ज भी नहीं लिया था जब वो चेंज हो गए, इससे हमारा लेना देना कोई नहीं है। और जो केसेस हैं उस हवाले से ये वाज़ेह है कि पिछले 3.5 साल में कोई सबूत नहीं है, अदालतों में जो मामलात गए निकला कुछ भी नहीं, और एक शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था कागज लहरा लहरा कर, जिसका नाम शहजाद अकबर है, वो आजकल नजर नहीं आता। तो ये सारे केसेस बेबुनियाद और बिल्कुल झूठ और मन घड़त दस्तावेजात पर बनाए गए। बरतानिया की अदालत ने हमें क्लियर किया, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बेलें कंफर्म हुई। तो केसेस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई बदउनवानी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। तो ये पहले भी मेरिट पे चल रहे थे और हम अपना दिफा कर रहे थे, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस हवाले से हमें कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं है अल्लाह ताला का। ये बताइएगा कि वफाक में और यहाँ पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है, तो असम्बलियों की एक आइनी मुद्दत है। ये बता दीजिए कि असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत आइन के मुताबिक पूरी करेंगी या मियाँ नवाज शरीफ की हाँ और ना से? देखिए, ये फैसला इत्तेहादियों के साथ तमाम स्टेक होल्डर जो हमारे साथ आए हैं, उसमें ऊपर भी पीटीआई के अरकान मौजूद हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, JUIF है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, BNP मेंगल है, बहुत सारे लोग इस फैसला साजी में शरीक हैं। तो जब भी ये फैसला ज़ेरे गौर आएगा तो तमाम इत्तेहादियों की मशावरत से ही होगा, जब भी ये ज़ेरे गौर आएगा। अच्छा दावन, कल एक बड़ी दबंग स्पीच जो है वो मौलाना फजल खान ने कराची में की, और आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस तरह की स्पीच हुई हो, या मरियम नवाज किया करती थी या करती हैं, या इमरान खान करते हैं, और अब तीसरे हैं मौलाना फजल रहमान। उन्होंने कहा कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह करना है तो फिर जजेस खुद आए और हुकूमत कर लें। तो पंजाब में भी यही कुछ हो रहा है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट कर रही है, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो आप पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, इन अदालतों के खिलाफ एक स्टैंड क्यों नहीं ले लेते कि ये आपके एग्जीक्यूटिव आर्डर को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है और गैर आईनी तरीके से जो है मफलूज हुआ है, तो इस पर आप क्यों नहीं कोई स्टैंड ले रहे ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी कान हो और आवाम भी आप पर एतमाद करे कि नहीं यार, सियासतदान अब ठीक हो चुके हैं और जो गलत कर रहे हैं अदारा उसके खिलाफ बोलते भी हैं। वो मोहसिन बिलाल साहब जब बैठे तैयारी करके आनी चाहिए। मेरी दाढ़ी ज़रूर है, मगर मैंने अभी JUIF में शमूलियत का कोई इरादा नहीं किया। अभी तक मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हूँ। JUIF की स्पीच के बारे में उनके किसी मौलाना साहब से आप ज़रूर मौक़िफ़ ले लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।